Bible. The best book to read is the Bible. The best book to read is the Bible. If you read it every day, it will help you all the way. Oh, the best book to read is the Bible. పఠింప గ్రంథము బైబిల్. పఠింప గ్రంథము బైబిల్. అనుదినం పఠించిన ప్రేమతోడ నడుపును. ఓ పఠింప శ్రేష్ఠ గ్రంథము బైబిల్. Brother Victor, bring God's word to us now. We have come to the last meeting of this 4 days special gatherings. हम अब आखिरी संदेश आखिरी सभा में आ गए इन 4 दिन की पवित्र महासभा के लिए। Many of you could come from various places and some have gone because today is Sunday. बहुत से लोग अलग अलग जगह से आज आए हैं, लेकिन संडे के कारण बहुत से लोग चले भी गए। So God has given this opportunity to gather like this once again during this year. और इस साल में भी परमेश्वर ने ये मौका दिया कि हम इस प्रकार से इकट्ठे हो सके। First day there was a little bit disturbance regarding rain, very little, but God has stopped the rain after hearing our prayers. पहले दिन थोड़ा बहुत असुविधा हुई बारिश होने के कारण, लेकिन प्रभु ने प्रार्थना का उत्तर में बारिश को भी हमारे लिए रोक दिया। Yeah, many of you have prayed बहुत से लोगों ने प्रार्थना किया and it is the grace of God. ये परमेश्वर का अनुग्रह है। So wherever we all know after the meeting many of us we will go away. और हम जानते हैं सभा के बाद हम सब चले जाएंगे। I am also leaving by 5 o'clock. और 5 बजे मैं भी निकल जाऊंगा। And so let us pray for one another wherever we are. तो ये हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें जहाँ कहीं भी हम हैं। Yeah, the ministry is so vast even in these end days. और इन अंत के दिनों में सेवकाई बहुत अधिक बढ़ रही है। Not only in India, in so many places, meetings are going on. ना केवल भारत में बल्कि बाहर और बहुत सारे अलग अलग जगहों में सभाएं हो रही हैं। So many places we are going. बहुत सारी जगह हम जा रहे हैं। So please pray for us also, be blessed. तो हम आपसे अनुरोध करते हैं हमारे लिए भी प्रार्थना करें। Especially for the Hindi speaking people, I told you, you can subscribe to the YouTube channel, John Victor Hindi Messages, so that you can hear those messages regularly. और हिंदी संदेशों के लिए जैसा मैंने बताया भाई के चैनल को जॉन विक्टर यूट्यूब जॉन विक्टर मैसेजेस जॉन विक्टर हिंदी मैसेजेस अच्छी तरह से सुनो, नहीं ये इधर उधर जाता हो। John Victor Hindi Message. जॉन विक्टर हिंदी मैसेजेस। Because in the name of John Victor 4 or 5 channels are there. और जॉन विक्टर के नाम से और भी चैनल्स हैं। So that's why John Victor Hindi Messages, then you can get at least 2 messages per week. तो जॉन विक्टर हिंदी मैसेजेस में यदि आप जाएंगे तो सप्ताह में 2 हिंदी आपको सब्सक्राइब मिल जाएंगे। आपको सब्सक्राइब कर लीजिए। So we'll be praying for you. हम आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे। So now, before we conclude this worship service, और इस आराधना सभा को खत्म करने से पहले once again shall we turn to Hebrews 11th chapter verse 6, the theme verse of this meeting. और एक बार फिर से मुख्य वचन को हम निकालेंगे इब्रानी की पुस्तक 11 अध्याय इसका 6 वचन। All of us together please. और एक साथ मिलकर इसको हम पढ़ लेंगे। Hebrews 11:6. इब्रानी 11 का 6 और विश्वास बिना से प्रसन्न करना चाहिए। परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए। Without faith it is impossible to please God. विश्वास के बिना उसको प्रसन्न करना अनहोना है। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Father, we praise Thee for the joy given unto us to be found in Thy presence on the day of Thy resurrection. प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं जो आनंद आपने हमें दिया प्रभु के दिन में आपके पुनरुत्थान के जय के दिन में आपके बहुत Thank you for प्यार। helping us during the time of worship and also table. हम धन्यवाद देते हैं आराधना के समय और मेज के समय दोनों समय आपने सहायता की। Thank you for this dear ones whom Thou hast brought from very far and also near places. प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं दूर और नजदीक से आपके प्रियजनों को आपने
thank you for keeping the climate so clear. धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने मौसम को भी साफ रखा। And oh Lord, we thank you for those dear ones who have gone to their places. We believe that thou hast used them in those places also. प्रभु जी, जो प्रियजन वापस चले गए इस संडे के कारण, प्रभु जी हमारा विश्वास है आपने अपने अपनी जगह में उनको इस्तेमाल किया। Today during this final message also, once again the Holy Spirit, according to our need, may minister the words of life. एक बार फिर से इस अंतिम संदेश में भी पवित्र आत्मा हमारी जरूरतों के हिसाब से प्रभु हमसे बात करे। For our own spiritual benefit and even physical benefit, oh Lord, something of eternal value we may receive from thy loving hands. हमारे भौतिक बढ़ोतरी के लिए और आत्मिक बढ़ोतरी के लिए, दोनों के लिए कुछ न कुछ हम सनातन के मूल्य को हम आज आपसे पा सकते हैं। Many people are praying for these meetings. Oh Lord, we are so thankful for them and we are also praying for them. आप प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, बहुत सारे लोगों ने इस सभा के लिए प्रार्थना किया और हम बाल बदले के लिए भी प्रार्थना। Now speak to us, O Lord. प्रभु आप हमसे बात करें। Expecting great things and bringing all of us under the sprinkling of thy precious blood. Ascribing all glory unto thy holy name. In Jesus' precious name we pray. आपसे बड़ी बड़ी बातों की अपेक्षा करते हुए, आपके पवित्र और धन्य नाम को महिमा देते हुए, आपसे आपको सारी महिमा आदर गौरव प्रशंसा करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम से मांगते हैं। We all know during these 3 to 4 days, we were seeing what faith is and what are the results of faith. और हम सब जानते हैं इन पिछले 3 दिनों के सभाओं में हमने विश्वास के बारे में सुना और विश्वास के परिणाम के बारे में भी सुना। Faith is a very important component of a believer's life. विश्वासी के जीवन में विश्वास एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। Salvation will give you life, whereas faith will enable you to stand. It is like the backbone. और साल्वेशन उद्धार आपको जीवन देता है, लेकिन विश्वास आपके रीढ़ की हड्डी के समान है, वो आपको खड़े होने में सहायता करता है। And we have seen what are the results of having faith. और हमने देखा कि विश्वास रखने का क्या परिणाम होता है। Every aspect of our life will be under the control of faith. और हमारे जीवन का हर एक पहलू विश्वास के द्वारा नियंत्रित Our होता है। salvation is by faith. उद्धार विश्वास के द्वारा, Assurance of salvation is by faith. उद्धार की निश्चयता विश्वास के We द्वारा, stand by faith. हम विश्वास के द्वारा खड़े होते We हैं, see by faith. देखते हैं विश्वास के We द्वारा, walk by faith. चलते हैं विश्वास के We द्वारा, live by faith. जीते हैं विश्वास के We द्वारा, will win. We will be victorious by faith. हम जयवंत होते हैं विश्वास के We द्वारा will grow by faith. और हम बढ़ते हैं विश्वास के So in द्वारा। every aspect of our life, in every moment of our life, we can see the what important role the faith will play. और इसलिए हम देखते हैं हमारे जीवन के हर एक पहलू में, हर एक जगह विश्वास का जो बहुत बड़ा रोल है उसको हम देखते हैं। And to learn some principles, we have started seeing some of the lives of the heroes of faith. और इन सैद्धांतिक बातों को सीखने के लिए हमने शुरू किया था कि इन विश्वास के योद्धाओं के जीवनों को देखते हुए। We have seen about Shadrach, Meshach, Abednego on the second day. दूसरे दिन हमने शद्रक, मेशक और अबेदनगो के बारे में देखा। Yesterday in the Bible study we have seen little bit about Abraham, or how the obedience and faith work together to make him a great man of और God. अब्राहम के जीवन से कल के दिन हमने देखा कि इस प्रकार से विश्वास और आज्ञाकारिता दोनों एक साथ चलते हैं। And last night we have seen about Joseph. और पिछली रात हमने यूसुफ के बारे में, And we have seen that the assessment of God will be totally different from the assessment of you and me. और हमने ये भी देखा कि मनुष्य कैसे अवलोकन करता है, उसका वो बिल्कुल अलग है। परमेश्वर हमें किस प्रकार से देखता Some है। of the things what we are giving so much importance, God may neglect them, and the things what we are neglecting, God may give more importance. और कई एक चीजों को जो हम बहुत ज्यादा मान्यता देते हैं, परमेश्वर उसको मान्यता नहीं देता, लेकिन परमेश्वर को और बातों को मान्यता देता है जो हम उसको नहीं समझते। That's why in our Christian life we must be very careful. और इसलिए हमारे मसीही जीवन में हमें बहुत ही सावधान रहना है। What are important and what are honorable in the sight of God, those things we have to choose. जो कुछ जरूरी है और जो कुछ परमेश्वर की दृष्टि में आदरणीय है, उन बातों को हमें चुनना है। And then we can have this eternal reward. और तब हमारे पास से अनंत काल का प्रतिफल आएगा। Is it not a strange thing? There are so many important incidents in the life of Joseph, but God considered those things which we think which are very unimportant. और क्या ये अच्छी बात नहीं है
कि यूसुफ के जीवन के अंदर कई ऐसे महत्वपूर्ण बात थे, लेकिन परमेश्वर ने उन दो बातों को रखा जिनको हम महत्वपूर्ण नहीं समझते। What God gave importance in the life of Joseph? What are the two things? और कौन सी दो बातें जो परमेश्वर ने उसके जीवन में महत्वपूर्ण दिखी? Joseph. यूसुफ के जीवन में हाँ, दो बातें क्या थी? Number one. पहला, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा आत्मा का अर्थ होता है। दो बातें हमने वचन में क्या देखी? Yeah. Oh, about the Exodus he has spoken. उसने हमने देखा था The deliverance of Israel. हाँ, इजरायलियों का बाहर निकलना और मिस्र को छोड़ करके। And secondly, और दूसरा, and we have seen from the life of Joseph. यूसुफ के जिनसे क्या देखा? God asked he asked his brother to take away his books. उसने अपने भाइयों से कहा कि जब तुम यहाँ से जाओ तो मेरी हड्डियों को जोसेफ का हड्डियां के बारे में हमको याद नहीं है, ये अब मुर्गी का हड्डियां। आज क्या मुर्गी, उसके बारे में सोच रहे हैं। आज दिन में बड़ा खाना है, मुर्गी की हड्डियां सोच रहे हैं। वो इजराइलिट्स जोसेफ का हड्डियां लेके गए, हम घर को जाने के टाइम मुर्गी का ये है हमारा स्पेशल मीटिंग। So two things God spoke about Joseph. दो बातें यूसुफ के बारे में प्रभु ने बताया। Yes, he believed the word of God, though the promise is given 280 years ago. उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास किया, जो भी कि वो प्रतिज्ञा 280 साल पहले दी गई। And he encouraged the people of Israel. और इजरायली लोगों को उसने उभारा। So he knew what he believed. और वो जानता था वो किस पर विश्वास करता। And secondly, और दूसरी he बात, never wanted a big pyramid in Egypt. और वो नहीं चाहता था कि इजिप्ट में, मिस्र में उसका बड़ा पिरामिड बने। Yeah, if the Egyptians have built a pyramid for Joseph, it would be the biggest pyramid and it would be the wonder of the world. और मिस्री लोग यदि यूसुफ के अगर पिरामिड को बनाते तो सबसे बड़ा पिरामिड होता और दुनिया का सबसे आश्चर्य चीज होता। And but he never wanted to be great in this world. लेकिन इस संसार में वो महान नहीं बनना चाहता था। When you are going away, take away my bones. और जब तुम यहाँ से निकलो, मेरे हड्डियों को साथ लेके जाओ। And Moses and Joshua, they have taken care of the bones of Joseph, and Joshua buried them in Shechem. और हम देखते हैं कि मूसा ने बड़े ध्यानपूर्वक उसको लिया, मूसा उसके बाद यहोशू को दिया और फिर यहोशू ने उसको शेकेम में बड़े आदर से उसको उसने God honored his servant Joseph so much. All the Israelites came for the burial of Joseph. और परमेश्वर ने यूसुफ को इतना आदर दिया कि वो शेकेम में सारे इजरायली वहां पर इकट्ठे हुए उसके हड्डियों को दफनाने के लिए। On that day, Joshua was the preacher. और उस दिन यहोशू प्रचारक था। That was the last message of Joshua, which was the burial message of Joseph. और वो यूसुफ जो यहोशू का आखिरी संदेश था और जो यूसुफ के समाधि के लिए जो हड्डियों को दफनाने के लिए। You and I must know what is important in the sight of God. तो आपको और मुझे ये जानना है कि परमेश्वर की दृष्टि में क्या चीज महत्वपूर्ण है। What are going to get rewards? What we have to do? We must know them. और क्या प्रतिफल हमें मिलने वाला है, इन बातों को हमें अपने जीवन में जानना है। Don't poke your nose. Don't involve in everything unwanted things. और हर एक चीज में अपना हस्तक्षेप मत करें, हर एक बेकार की बातों में अपना पैर न डालें। Many times how we are wasting our time. और कैसे हम अपना समय कई बार बर्बाद करते हैं। Unnecessarily we will involve in everything. That is not for us, but we will go and poke our nose there. बेकार की बातों में या जहाँ पे आपकी जरूरत नहीं है उन जगहों पर भी आप जा करके अपने हाथ डालते हैं। You are wasting your time. अपना समय बर्बाद करते हैं। And when you stand before God, everybody will be receiving reward. You will be clapping. तुम्हारा reward कुछ भी नहीं रहा। और जब प्रभु के सामने खड़े होंगे और सब कोई रिवॉर्ड मिल रहा होगा, आप ताली बजाते रहोगे, आपके पास कोई रिवॉर्ड नहीं होगा। So then what is the use? तो इसका क्या फायदा है? So you and I, we must understand what is important in the sight of God and involve yourself in those things. और आपको और मुझे इस बात को भली भांति समझना है कि क्या चीज परमेश्वर की दृष्टि में महत्वपूर्ण है और उन्हीं बातों में अपने आपको लगाना है। Now all of you close your Bibles. और अब सब कोई अपना बाइबल बंद कर दीजिए। Close your Bibles.
Now you tell two things about Jacob. अब याकूब के बारे में आप 2 बातें बताइए। याकूब के बारे में बहुत मालूम है ना? हाँ, क्या? विश्वास से हाँ, मरते समय उसने आराधना किया था। हाँ, मरते समय आराधना आराधना किया। हाँ, हाँ, धोखा हाँ, अच्छा अच्छा, ओके, हाँ, हाँ, फिरौन को आशीष दिया लास्ट हाँ, आशीष दिया। आशीष दिया। लास्ट में फिरौन को आशीष दिया फिरौन को आशीष, आशीर्वाद दिया। सुने, हाँ। पीछे पर बोलिए। Now the paper is out, isn't it? अब तुमने बता दिया कैसा। Intelligent people, they are telling correctly. अब बाइबल से देख के बता रहे हैं। So now, if you see the life of Jacob, we know so many things about Jacob. अब यदि आप याकूब के जीवन को देखेंगे तो याकूब के जीवन में बहुत सारी बातें आप जानते हैं। Yeah, he is. Everybody says that he is a deceiver. और कई लोगों ने बताया कि वो धोखा देने वाला है। He deceived his brother, father, and even the uncle. और अपने भाई को धोखा दिया, अपने पिता को धोखा दिया और अपने मामा को भी धोखा दिया। Not only that, ना केवल इतना, many more things we can tell about Jacob, his Bethel experience and his Peniel experience. और बहुत सारी बातें याकूब के जीवन की, बेतेल का अनुभव, पनियल का अनुभव, Man, so many things are there. और बहुत सारी बातें। But लेकिन when we ask God, जब हम परमेश्वर से पूछते हैं, Lord, प्रभु you tell two things about Joseph. Jacob. याकूब के बारे में 2 बातें बताइए। Yeah, Jacob lived how many years? जेकब कितने साल जिया, याकूब कितने साल अब जिया, ये तो पेपर आउट हो गए, ये तो आउट नहीं होगा ना क्वेश्चन। बताइए कितने साल जिया हाँ। याकूब? हो गया। हाँ? हाँ? हवा निकल गई। अब ये तो वो 11th चैप्टर 21st वर्ष पढ़ के आया। हाँ, अब क्या है? हाँ, एक भाई ने तो 11 अध्याय 21 वचन पढ़ के बता हाँ, कितना साल याकूब जिया। हाँ, सिंपल क्वेश्चन। हाँ, 99, ये क्रिकेट समझ रहे क्या? नहीं याद कर पड़े। 99 साल। बाद में सेंचुरी। हाँ, या कम से कम जेकब नाम किसका है? कम से कम उन्होंने मालूम है कितना साल जिए। याकूब नाम किसका है यहाँ पर? वही तो बता दो कि कितने साल जिया। हाँ, हाँ, देखो हमारा नॉलेज कितना है बड़ी। 130 130 कौन? फारूक का सामने करने का टाइम पे 130 है। फारूक का सामने उन्हें नहीं मार गया। हाँ? 147 another answer. एक और उत्तर आया। Because time is running, we agree for 147. समय ज्यादा बन रहा है इसलिए हम 147 पे। Jacob lived for 147 years. याकूब 147 साल जिया। In that 147 years, there are so many things we can talk about Jacob. और उन 147 सालों में याकूब के बारे में कई बातों को बता सकते हैं। Yeah, God changed his name from Jacob to Israel. That is a wonderful experience और and Peniel. इतना अद्भुत अनुभव पेनियल के अंदर हम देखते हैं याकूब का नाम बदल के इजराइल रख दिया परमेश्वर ने। But लेकिन what God says at the end of his life. लेकिन उसके जीवन के अंत काल में, अंत समय में परमेश्वर क्या We may tell 100 things about Jacob. That is not important. याकूब के बारे में हम 100 बातें कह दें, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं। But what God is telling is important. लेकिन परमेश्वर उसके बारे में क्या कह रहा है ये जरूरी Do you है। know what God is telling? आपको पता परमेश्वर ने क्या कहा? God is not telling he is a betrayer. परमेश्वर ये नहीं कह रहा कि वो धोखा देने वाला God है। is not telling that I have changed his name as Israel. और उसने ये भी नहीं बताया कि उसका नाम इजराइल और रख ये दिया। तो बहुत बड़ा परिवार है, 4 वाइफ्स है, 13 चिल्ड्रन है। ये नहीं बताया कि 4 पत्नियां हैं, 13 बच्चे हैं। No, he is not telling all this. ये प्रभु ये सब बातें नहीं बता रहा। But what he is telling? लेकिन क्या कह रहे हैं? 11:21 of Hebrews all together, please. और निकालेंगे इब्रानी 11 और 21 All of us. एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। Only one verse about Jacob. एक ही वचन है याकूब के बारे में लिखा है, इब्रानी 11 और उसका 21। By faith, विश्वास से याकूब ने David, समय bless you.
एक को आशीष दी और एक को साथ में अटल किया। Two important things God is mentioning here. यहाँ पे दो मुख्य बात को परमेश्वर बता रहे हैं। We all know about Jacob. याकूब के बारे में हम सब जानते हैं। Before we come to 11:21 of Hebrews. और इब्रानी 11:21 में आने से पहले See, at the time of his birth, Jacob did an unusual thing. और अपने जन्म के समय में याकूब ने एक बड़ा अजीब काम किया। That is in chapter 25 of Genesis. कि उत्पत्ति 25 अध्याय में And if you read 24, 25 and 26. यदि आप 24, 25 और 26 पढ़ेंगे, And what he has done, क्या किया उसने? even before he was born, he started using his hands. और इससे पहले कि वो पैदा हो, उसने अपने हाथ का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। क्या काम करने का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या कर रहा है अपने हाथों से? वायु को खींच रहे हैं। उसके भाई को एडी को पकड़ लिया और खींच रहा है। आज तक यही चल रहा है। और आज भी यही हो रहा है। एक भाई खड़े हुए तो दूसरा भाई खींचना बस। तो एक भाई खड़ा होता है काम करने के लिए, दूसरा भाई उसका पैर खींचता है। भाई दोनों पहले जा रहे हैं। क्योंकि वो पहले जा रहा है। Esau is coming out first. वो पहले जाना चाहता है। So he should not come first. I must go first. वो पहले नहीं जाना, मैं पहले जाऊंगा। So he started using his hands even before his birth to trip his brother Esau. पैदा होने से पहले ही वो अपने भाई एसाव के पैर को पकड़ लिया ताकि उसको रोके। And he was a supplanter and he was a trickster, we all know. और हम सब जानते हैं वो धोखेबाज है और वो चालाकी करता है। He handled things all the time for his self benefit. अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए उसने हर एक बातों को अपने जीवन में। And with all his tricks, he could grab the blessings of his brother. He could grab the birthright of his brother. और पूरे चालाकी करके उसके भाई के आशीष को भी ले लिया और उसके पहलौठे अधिकार को भी ले लिया। See, when you want to do things by tricks, remember you stop living by faith. जब आप चालाकी करके धोखाधड़ी करके जीवन बिताने लगते हैं तब आप विश्वास से जीवन नहीं जीते। When you start doing things with all your tricks and conspiracies, remember that there is no faith in you. You stop living by faith. और जब आप ऐसे चालाकी करके षड्यंत्र करके अपने लिए चीजों को इकट्ठा करना चाहते हैं अपने फायदे के लिए, तब आप विश्वास में नहीं जीते। That's why God has not written all these things. और इसीलिए परमेश्वर ने उन सारी बातों को यहाँ नहीं लिखा। He has not done these things by faith. और क्योंकि उसने ये सारे काम विश्वास से नहीं किया। By faith, what he has done, those things are recorded. जो कुछ विश्वास से उसने किया वही चीज यहाँ पे लिखी Today है। many people are scheming so many things. आज बहुत सारे लोग बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं। अरे तुम वैसा बोलो, मैं आके वैसा बोलो। तुम जाके ऐसे बोलो, मैं उससे जाके ऐसे बोलूं। See, they are scheming so many things. चालाकी करते हैं षड्यंत्र रचते If हैं। you are having faith, you will wait on God. लेकिन यदि आपके ऊपर विश्वास है तो आप प्रभु का Everywhere there's schemes and tricks are going on. हर एक जगह हम देखते हैं ऐसी चालाकी कर रहे हैं लोग। Remember one thing. एक बात याद रखो, Whatever you are doing by tricks, not by faith, God will never consider. जो कुछ भी काम आप चालाकी से कर रहे हो और फिर विश्वास से नहीं कर रहे, परमेश्वर कभी उसको आशीष नहीं देगा। But what is written there in Hebrews? क्या लिखा है इब्रानी में? By faith he did it. विश्वास से याकूब ने दो काम किया And God considered those two things. और उन दोनों बातों को ही प्रभु ने। Today I want to ask you a question directly. आज मैं आपसे सामने सवाल In करूंगा, your life, are you doing things by faith or by tricks and schemes? आपके जीवन में क्या आप अपने विश्वास से काम कर रहे हैं या फिर किसी चालाकी से षड्यंत्र से काम कर रहे हैं? Now Jacob is a very old man. Now he is at the age of 147. It is written in 11:21. Before dying he did this. हाँ, यहाँ पर लिखा है इब्रानी 11:21 में कि मरने से पहले यूसुफ 147 साल का हो गया, बूढ़ा हो। माफ करिए, मैं बार-बार यूसुफ बोल रहा हूँ। याकूब मरने से पहले जो 147 साल का था वो बूढ़ा हो गया And now he is very old. अब बहुत ही बूढ़ा हो गया है। And see the beauty in the verses. और यहाँ पे जो वचन में जो सुंदरता है, Whatever Jacob did in 146 years, God has not considered. Only the last year he considered. जो कुछ भी 146 साल याकूब ने किया, परमेश्वर ने उसको नहीं लेखा लिया, लेकिन आखिरी के साल को 147वें साल में जो किया उसको लिखा है। That is
that truth must tremble you and me. और ये सच्चाई आपको और मुझे कंपाना चाहिए। What you are doing? क्या कर रहे हैं हम? With all his strength, what he did, God said, 0 marks. सारे अपने चालाकी से, स्ट्रेंथ से, षड्यंत्र से, जो कुछ भी उसने किया, परमेश्वर कह रहा है इसका 0 मार्क। As a weak man, no strength, leaning on the staff, he did only 2 things. God said, write those 2 things. और ये कमजोर है, बूढ़ा हो गया, मरने पर है, खड़ा भी नहीं हो पा रहा, लाठी के सहारे को लेके मुश्किल से, परमेश्वर का ये 2 बात ये मैं लिखूंगा। Whatever you do in your weakness, God will consider it. आप अपनी कमजोरी में जो काम को करते हैं, परमेश्वर उन बातों को ध्यान देता Do है। you know why God waited till Moses became 80 to call him again? आपको क्या लगता है परमेश्वर इंतजार करता रहा मूसा को 80 साल होने के बाद, फिर उसने उसको बुलाया। See, 40 years he was there in palace. 40 साल तो वो राजमहल में था, And he killed one Egyptian. एक मिस्री को मार दिया, And he ran away to Horeb. अब वो वहां से भाग के होरेब चला He गया got one wife and 2 children. He had a family. और वहां पर उसको परिवार मिला, पत्नी मिले, 2 बच्चे मिले। God can go when Moses was 50. और जब 50 साल का था मूसा तब परमेश्वर बुला सकता था। He given 60 at least. चलो ठीक है, 50 नहीं Why तो God waited till Moses was 80? क्यों 80 साल तक परमेश्वर इंतजार करता Why है? exactly at the age of 80 God went to Horeb to call Moses? और एकदम ठीक 80 साल की उम्र में परमेश्वर होरेब पहाड़ पर उसको बुलाया। Moses is the reason for that. मूसा उसका कारण है। Why? क्यों? Moses with his own hand he wrote one thing. मूसा ने अपने हाथ से एक चीज लिखा। In Psalm 90 verse 10. भजन 90 और उसका 10 में क्या लिखे? We all know it. पढ़ने बाइबल पढ़ना। हमारी आयु के वर्ष Our Moses is writing this psalm. Moses is writing this psalm. मूसा इस गीत को लिख रहा है। And what he is writing? क्या लिखता है? हमारा आयु 70 वर्ष की होती है 70 years. और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो So जाए। ज्यादा से ज्यादा कितना? 80 वर्ष. So after 80 वर्ष क्या होगा? I will become 0. My strength will go. 80 साल के बाद मैं शून्य हो जाऊंगा, मेरा ताकत चला जाएगा। So all my strength will become 0 when I become 70 or at the most 80. 70 वर्ष या उससे बल के कारण 80 साल, उसके बाद मैं शून्य हो जाऊंगा। Now what God said? परमेश्वर ने क्या कहा? Hey Moses, you only told at 80 you will become 0. तूने बोला था मूसा कि 80 साल में शून्य हो जाते हैं। So 80 साल में आप शून्य होने के बाद मैं आते हैं। तो 80 साल में जब तेरी ताकत पूरी चले जाएगी फिर मैं आऊंगा। And then you can deliver the people of Israel not with your strength. You are 0 now with my strength. अब तू क्योंकि शून्य हो गया 80 साल के बाद, अब मेरे ताकत से तू इस्राएलियों को So छुड़ाएगा। why God waited for 80 years? और क्यों परमेश्वर 80 साल तक इंतजार किया? God waited till Moses become totally weak. और परमेश्वर तब तक इंतजार करता रहा जब तक मूसा पूरी तरीके से 0 नहीं हो गया। That's why see Moses, we all know Stephen says और इसलिए हम जानते हैं स्टेफेनुस ने मूसा के in बारे में Acts कहा। chapter 7 verse 20 और प्रेरितों का काम 7 और उसका 20 में 20 to 22 और 20 से 22 तक, what Stephen says? और स्टीफन क्या कहता है? Moses is skillful in all the arts and crafts of Egypt. और मूसा मिस्र के सारे क्रियाओं में और कलाओं में बहुत माहिर था। And he is skillful in his word and deed. और उसके वचन और कार्य में वो सामर्थ था। So Moses is very good at speaking. He is a very good orator. He is good at word. तो मूसा जो है बहुत अच्छे से बात कर सकता है, बहुत अच्छे से बोलता है। But up to what time God waited? लेकिन कब तक परमेश्वर इंतजार किया? And God asked Moses, "Hey, you go to Pharaoh." अभी बोला मूसा को बोला परमेश्वर ने जाओ फिरौन के पास। And now what Moses is telling? मूसा क्या कह रहा है? He is a good speaker, but he is telling, "I cannot speak." वो बहुत अच्छा बोलने वाला है लेकिन कहता है मैं बोल नहीं सकता। मैं नहीं बोल सकता जब तक प्रभु ने इंतजार करे। मूसा जब तक उस परिस्थिति में नहीं आया, जब तक वो कहे कि मैं नहीं बोल सकता, तब I तक am परमेश्वर इंतजार करे। 0. मैं अब 0 हूँ, शून्य हूँ। And then God said, तब परमेश्वर ने कहा "Yes. अब तू तैयार। Now I want to use you."
अब मैं चाहता हूँ कि तू मैं तुझे इस्तेमाल करना चाहता हूँ। Whatever you do in weakness, that is your weakness means fully depending upon God, that only God will consider. जो कुछ भी आप अपनी कमजोरी में करते हैं, आपकी कमजोरी का मतलब परमेश्वर के ऊपर पूरे आधारित होके वही चीज परमेश्वर। Yesterday we have seen from the life of Abraham. कल के दिन हमने अब्राहम के जीवन से देखा, Depending on his own strength, he gave birth to Ishmael. और अपने खुद की ताकत से उसने इस्माइल को पैदा किया, And God said, send him away. He will not be considered as the covenant son. और परमेश्वर ने उससे कहा कि उसको तू दूर भेज दे, वो तेरा प्रतिज्ञा का पुत्र नहीं है। And when the body of Abraham became a big zero, like a dead body, और अब तक देखते हैं कि अब्राहम का जीवन जब शरीर जब शून्य हो गया, मर गया, then God gave Isaac. तब उसके बाद इसहाक को दिया। In the weakness of Abraham, God gave birth to Isaac. पर अब्राहम की कमजोरी में परमेश्वर ने उसको इसहाक दिया। This is the spiritual fruit, he said. ये कहता है ये आत्मिक भोजन है। In the life of Moses we have seen मूसा के जीवन में हमने देखा what you have done in the first 40 years and second 40 years, it is a big zero. जो कुछ तूने पहले 40 साल में किया और उसके बाद दूसरे 40 साल में किया, वो सब शून्य है। But लेकिन whatever you have done after 80, after you became junior, then I will consider. लेकिन 80 साल के बाद जो कुछ भी तूने किया, उन बातों को मैं मानूं। In the life of Jacob, याकूब के जीवन में भी what all you have done in 146 years, जो कुछ भी तूने 147 साल तक किया, it is not that much important. ये उतना अधिक मायने नहीं रखता। But what you have done in the 147th year, in your weakness, not able to get up, depending upon the staff, that I will give you. लेकिन 147वें साल में अपनी कमजोरी में जो तूने किया, खड़े नहीं हो पा रहा है, लकड़ी के सहारे खड़ा हो रहा है, उसको मैं लिखूंगा। Brothers and sisters, भाइयों और बहनों, we have to learn lessons from the lives of these people. इन लोगों के जीवनों के द्वारा हमें सीखना है। These things they have not done by their strength. These things they have done by faith. ये बातें उन्होंने अपने ताकत से नहीं किया, ये सारे बातें उन्होंने विश्वास से किया। That's why in every verse it is written by faith, by faith, by faith. और इसलिए हर एक वचन में लिखा हुआ है विश्वास ही से, विश्वास ही से, विश्वास ही से। Whatever you are doing with faith, God will consider that. जो कुछ भी आप कर रहे हो विश्वास के द्वारा, परमेश्वर उसको मान्यता देगा। What he has done with faith, क्या किया विश्वास से? two important things. दो बातें किया उसने। Number one, पहली चीज, yeah, what is written there in verse 21? क्या लिखा है इब्रानी 11:21? When he was dying, blessed both the sons of Joseph. विश्वास ही से याकूब ने मरते समय यूसुफ के दोनों पुत्रों को एक एक को आशीष दी। Now he became very weak. बहुत कमजोर हो गया, Like his father, he is not able to see properly. अब पिता के समान वो भी कुछ देख नहीं पा रहा है। Isaac was also almost he was blind at the time of blessing Jacob. और जैसे इसहाक याकूब को आशीष देते समय उसकी आंखें धुंधली हो गई। So here Jacob is also like that. अब उसी प्रकार से याकूब He is भी very weak. He is lying on the bed. बहुत ही कमजोर है, बिस्तर पे लेटा हुआ है। And then what Joseph did? अब यूसुफ ने क्या किया? He brought his two children. हाँ, यूसुफ ले आया अपने दोनों बच्चों को। And his Manasseh and Ephraim. मनश्शे और अफ्राइम को यूसुफ ले आया। First one is Manasseh and the second one is Ephraim. पहला बड़ा वाला मनश्शे, दूसरा वाला अफ्राइम है। And Joseph knew very well his father Jacob is a very spiritual man. He talked with God. He walked with God. और यूसुफ इस बात को जानता था कि मेरा पिता याकूब जो है बहुत ही आत्मिक व्यक्ति है और वो परमेश्वर के साथ साथ चलता है। So now he is going to die. अब वो मरने की स्थिति पे है। And now I will bring my children. अब मैं अपने बच्चों को लाऊंगा। I want my children to be blessed by my father. मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे मेरे पिता के द्वारा आशीष This की is जाएं। the responsibility of parents. Remember that. इस बात को याद रखें, ये माता पिता की जिम्मेवारी है। कौन सा स्कूल में ज्वाइन करना बहुत अच्छी बात है. कौन से स्कूल में ज्वाइन करना है सोचते हैं, अच्छी बात है। Yeah, where we have to give coaching, that is also very good. अच्छी बात है कि हम सोचते हैं कि कोचिंग कहाँ लें। हाँ, उसका नाम में फिक्स्ड डिपॉजिट डालना वो भी अच्छी बात है. अच्छी बात है, उनके नाम में फिक्स्ड डिपॉजिट फ्लैट और एक कार. एक फ्लैट भी खरीदना उनके नाम But में। what about their spiritual life? लेकिन उनके आत्मिक जीवन के बारे में क्या? Joseph was the prime minister. He got so much property. और यूसुफ तो वहाँ पर प्रधानमंत्री था, उसके पास धन की कमी नहीं थी। He can give so much to Manasseh and Ephraim. मनश्शे और अफ्राइम को इफरात धन दे सकता था, But what he is thinking? लेकिन उसने क्या सोचा? I want spiritual blessings from my father. मैं आत्मिक आशीष को अपने पिता से पाऊं। These positions all will not be there. ये सारे पद ओहदे नहीं रहेंगे। Oh,
he brought the two children. आप भी अपने दोनों बच्चों को लाए। And this man, अब ये व्यक्ति, you please bless. इनको आशीष दो। In other words, दूसरे शब्दों में, you pass on the blessings what you have received from Abraham, Isaac to my children. दूसरे शब्दों में, तुम उन आशीषों को जो तूने अब्राहम और इसहाक से पाई है, अब तू अपने मेरे बच्चों को उसको दे। And he brought them. उसके सामने लाए। And on the right side he kept Manasseh. अभी अपने सीधे हाथ पे उसने मनश्शे को रखा। Later you can read the last chapters of the Genesis. और आखिरी अध्यायों को, उत्पत्ति को आप बाद में पढ़िए। Now we are not going to say. I think another 10 to 15 minutes is there. और थोड़ा समय बचा है इसलिए। So he, under the right hand he took the eldest one Manasseh. और बड़े वाले मनश्शे को याकूब के सीधे हाथ में रखा। And then on the left hand he kept Ephraim. और उल्टे हाथ के बाएं तरफ अफरेम को रखा। And now what he has done? और उसने क्या किया? ये चालाकी छपकी पंपड़ किसी ने बहुत चालाकी। याकूब को धोखा नहीं दे सकते आप, वो बहुत स्मार्ट है। 147 साल में। Now when he brought like that, he is not able to see properly. ठीक से देख भी नहीं पा रहा है। But even then, उस समय भी suddenly what he has done? क्या किया अचानक? हाथ को अपने उसने बदल दिया। कितना अच्छा। कितना चालाक है। You see, suddenly he has crossed his hands. अपने हाथ को उसने बदल दिया। And he put his right hand on Ephraim and left hand on Manasseh. उसने अपना सीधा हाथ छोटे वाले के ऊपर, अफरेम के ऊपर, और उल्टा हाथ मनश्शे के ऊपर, जो बड़े वाले के And ऊपर। immediately Joseph was displeased. और अब तुरंत देखते ही यूसुफ नाराज हो गया। अरे क्या पापा क्या कर रहे तुम? क्या पापा क्या कर रहे हो? तो आगे नहीं दिख रहे। आपको आँख में दिख नहीं रहा। And I brought Manasseh under your right hand. मनश्शे को मैंने दाएं हाथ में रखा है। ये क्या काम कर रहे? ये आप हाथ क्यों बदल रहे हो? No, you put your right hand on Manasseh and left hand on Ephraim. नहीं, तुम बड़े वाले को सीधा हाथ से आशीष दो और छोटे वाले को उल्टे हाथ से आशीष दो। Then what Jacob is telling? याकूब क्या बोल रहा है? I know my son, I know. मेरे पुत्र मैं जानता हूँ। हाथ कैसा यूज करना मुझे सिखा दे क्या? हाथ कैसे इस्तेमाल करना तू मुझे सिखाएगा। माँ के गर्भ में भी हाथ यूज करे। माँ के पेट में पेट से ही मैं अपने हाथ को इस्तेमाल कर रहा हूँ। तुम बच्चा है रे। मेरे सामने तुम बच्चा ही है। I know my son, I know. मैं जानता हूँ मेरे बेटे। बूढ़े लोगों से बहुत केयरफुल रहना। बूढ़े लोगों से बहुत ध्यान रखना। Especially the people of God. खास करके प्रभु के लोग जो प्रभु का भय मानते हैं। Because many times they will do the thing which are against our, thinking. कई बार वो ऐसे काम करते हैं कि हमारे सोच से विपरीत होता है। So here he is telling, I know my son, I know. और वो कह रहा है कि मेरे बेटे मैं जानता हूँ इस बात को। And I must cross my hands. कि मैं अपने हाथ को इस तरीके से बदल दूं। See, even in the life of Bhagat Singh. भाई भगत सिंह के जीवन में भी See, I tell you very openly. बहुत ही खुले रूप से मैं बता रहा हूँ। If you are a spiritual man, then only you can adjust yourself with another spiritual man. अगर आप आत्मिक व्यक्ति हो तभी आप एक आत्मिक व्यक्ति के साथ रह पाओगे। Because that आत्मिक व्यक्ति he will behave in a different way. क्योंकि आत्मिक व्यक्ति जो है वो बड़े अलग तरीके से वो बर्ताव करते हैं। Because they will live by faith, not by sight. क्योंकि वो देख करके नहीं बल्कि विश्वास से जीवन बिताते हैं। One day, एक दिन Bhagat Singh has to go to the airport. भाई भगत सिंह को एयरपोर्ट जाना था। And along with him, और उसके साथ Brother Dawson and others were there. He was going to foreign country for meetings. फॉरेन कंट्री जा रहे थे मीटिंग के लिए, तो भाई दासन और वो दूसरे लोग भी उनके साथ थे। And flight time हो गया. फ्लाइट का समय हो गया। So जल्दी बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद जाना। हैदराबाद बेगमपेट एयरपोर्ट जाना है। So the Brother Dawson and others they were asking the car driver, go quickly. और भाई दासन और दूसरे लोग बोल रहे थे, कार चला रहा था ड्राइवर को, जल्दी चलाओ। And then the car has come to Hebron gate. अब कार आ गया हेब्रोन के गेट के पास। And Hebron gate, one boy was weeping. और वहाँ पे हेब्रोन के गेट के पास एक लड़का रो रहा था। भाई
they stopped the car. Why you are weeping? गाड़ी रोके, अरे नहीं क्यों रो रहे हो? Then that boy said, अब लड़के ने कहा, my mother is in hospital. मेरी माँ हॉस्पिटल में है, She is not well. वो बीमार है, She may die. मर जाएगी, भैया आके प्रार्थना आके उसके लिए प्रार्थना कर दो। then Brother Singh said, take the car to hospital. बोला हॉस्पिटल ले चलो, That sister is in need. और वो बहन की जरूरत है, Take the car to the hospital. कार ले चलो हॉस्पिटल। When Brother Bhat Singh said like that, Brother Dasan and others, their BP चढ़ रहे, ये क्या है, टाइम हो गया है ये। दासन भाई और दूसरे लोगों का तो वो नाराज होने लगे, बीपी बढ़ गई कि भाई एयरपोर्ट का टाइम हो रहा है। And very difficult to tell to Brother Bhat Singh. अब बड़ा मुश्किल है भाई भक्त सिंह को कैसे बोले, अब they can't even show the watch also. घड़ी भी नहीं दिखा सकते। हमारा मैसेज लेट आई तो पीछे से वॉचेस दिखाते, उधर वैसे नहीं चलता। हमारा संदेश लेट होता है तो पीछे से घड़ी दिखाते हैं, वहाँ ऐसा नहीं चलता है। So simplicity like that. अभी चुपचाप बैठे हैं, ये क्या है, वैसे गए तो वैसे रहता। कैसे करें, अब ये तो समझाना मुश्किल है। So they went to the hospital. तो हॉस्पिटल गए, And he prayed for that sister. उस बहन के लिए प्रार्थना किया। And suppose the flight is by, suppose let us say 3 o'clock, they went by 2:30 or 2:45. और मान लीजिए 3 बजे फ्लाइट जाती है तो कम से कम 2:30 या 2:45 बजे पहुंचे। So these people thought everything is over, the flight will go, we have to come back. और उन्होंने सोचा सब कुछ खत्म हो गया, फ्लाइट तो चली गई होगी और हमको वापस And by the time they went to the airport, the announcement was made, the flight was 3 hours late. और जब वो जैसे एयरपोर्ट में पहुंचे, वहाँ पे अनाउंसमेंट होता है कि जहाज 3 घंटे लेट से जाएगी। The flight is 3 घंटे लेट से so उड़ेगी, 3 घंटा लेट से उड़ेगी। so 3 hours late. 3 घंटा लेट। And the person took his luggage and looking at them, please. So this वैक्सीन अपना सूटकेस उठाया, उनकी तरफ देखा, उससे spiritual people, it is very difficult to travel with them if you are not spiritual. अगर आप आत्मिक नहीं है तो आपको आत्मिक लोगों के साथ रहना, उनके साथ सफर करना थोड़ा मुश्किल है। I am not telling that Dasan is not spiritual, not like मैं that. ये They नहीं are बोल रहा spiritual हूँ, people. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई दासन स्पिरिचुअल नहीं है, वो सब आत्मिक लोग They हैं are all big people. और बहुत प्रभु के महादास हैं। But in general, I am telling, लेकिन साधारण रूप से मैं if बता you रहा are हूँ, a person who is walking by sight, it is very difficult to be with the person who is walking by faith. और ये जो व्यक्ति देख के चलता है वो उसको बहुत मुश्किल होगा जो व्यक्ति विश्वास से चलता है, Because he will not hear you. क्योंकि वो आपके नहीं सुनेगा And your BP will be shooting up. और आपका बीपी बढ़ता जाएगा। So this man Jacob, अब ये याकूब योसेफ के देख के, यूसुफ को देखते हैं, बहुत छोटा बच्चा है। अभी तो बच्चे हैं मेरे सामने, I know my son, I know. मैं जानता हूँ मेरे पुत्र में, Yeah, I know he is Ephraim and he is Manasseh. मैं जानता हूँ ये मनश्शे है और ये अफ्रेम है। You need not teach me how to use hands. I am expert, 147 years expertise. और मेरे को तुम मेरे हाथ को इस्तेमाल करना मत सिखाओ, मैं 147 साल का मेरा तजुर्बा है। So God said, परमेश्वर ने कहा this right. इसको लिख ले। Why? क्यों? Jacob is very much interested in passing on the blessings what he received to the next generation. क्योंकि याकूब बहुत दिलचस्पी रखा है अपने उन आशीषों को दूसरे वंश को देने के लिए। I tell you, brothers and sisters, भाई और बहनों में बताऊं, you are having good properties आपके पास बहुत धन होगा, and you are giving to your children when you are leaving this world. आप इस संसार को छोड़ते हैं, अपने बच्चों को देते हैं, That is good. I am not against it. मैं उसके विरोध में नहीं हूँ, ये अच्छी बात है। But what about the spiritual blessings? लेकिन आत्मिक आशीषों के बारे में क्या है? Where are your children today? आज के दिन आपके बच्चे You कहाँ are हैं? coming to the house of God. Where are your children? आप प्रभु के भवन में आ रहे हैं, आपके बच्चे कहाँ हैं? Are you passing on the blessings upon the in the lives of your children? क्या आप अपने आशीषों को, आत्मिक आशीषों को अपने बच्चों के ऊपर डाल रहे हैं? Think of it. सोचिए, How many times we say, to how many meetings we go, people will complain. Anna, भैया, मेरे बच्चे के बारे में प्रार्थना करो, बच्ची के बारे में प्रार्थना करो, वो मंडली बनाएगा। कई बार कई जगह कहीं भी हम जाते हैं, कई लोग आके मुझसे कहते हैं, अन्ना ब्रदर मेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करो, मंडली नहीं आते। You
It is your responsibility. ये आपकी जिम्मेवारी है। First of all, you are responsible because God has given as a gift to you. Children are the gift of God. और लिखा है वचन में कि परमेश्वर के द्वारा बच्चे दान दिए गए, इसलिए तुम्हारी जिम्मेदारी है कि उसको देखभाल करो। Right from their childhood, you are not careful about them. Today, they left the way of God. They are going in the other way. Today, by weeping, what is the use? बचपन से आपने बच्चों को प्रभु के रास्ते में नहीं रखा और आज जब जवान हो गए आप रो रहे हैं, इसका कोई फायदा नहीं। Manasseh and Ephraim, they were born in Egypt. मनश्शे और अफ्रैम दोनों मिस्र में पैदा हुए। They know all the things of Egypt. They do not know much about Israelites. तो इजराइलियों के बारे में उनको ज्यादा नहीं मालूम है, वो मिस्रियों के बारे में ज्यादा That's मालूम है। why though he is having so much responsibility, Joseph is very careful about his children. और इसलिए उतनी सारी जिम्मेदारी के बावजूद भी यूसुफ को ये भान है कि उसको क्या करना है आत्मिक आशीष। Oh, I must bring them to the man of God, Jacob. मैं अपने पिता जो प्रभु का दास है उसके पास मुझे लेकर जाना So है। what he is telling? क्या कह रहा है? अरे मेरा बेटा जोसेफ, यूसुफ मेरे बेटे, do you know what is the true blessing? आपको पता है सच्ची आशीष क्या है? The blessings what I am giving, they are not the true blessing. जो आशीष मैं दे रहा हूँ वो सच्ची आशीष नहीं है। When they are going to be blessed truly, जब वो सचमुच में आशीष पाएंगे, when they are कब वो सचमुच में आशीष पाएंगे? when they come under the cross. जब वो क्रूस के अधीनता में आएंगे। He can bless like this, ऐसे आशीष दे सकता but he था। crossed his hand. अपने हाथ को उसने क्रॉस कर लिया। Joseph, bring those children under the cross. यूसुफ बच्चों को क्रूस के अधीनता में लेकर They आओ, will be blessed. तब वो आशीष When पाएंगे। they come to the cross, जब वो क्रूस के पास आएंगे, not the first birth, the rebirth, the second birth, the repentance is more blessed. तो पहला जन्म नहीं, दूसरा जन्म जो नया जन्म होता है वो ज्यादा आशीषित होता है। When they come under the cross, Manasseh, the firstborn is not important. The rebirth, the second birth, the repentance, Ephraim will be blessed. तो जब वो क्रूस के पास आते तो पहला जन्म जो है वो मायने नहीं रखता, लेकिन दूसरा जन्म जो उनका पुनर्जन्म है, जो नया जन्म है, वो आशीषित होता है। Oh, when you come under the cross, जब rebirth is very important, not the birth. From where you are born, all these things are not जब important. क्रूस के पास आते हैं तो आपका जन्म कहाँ हुआ, पहला जन्म से कोई मायने नहीं, लेकिन दूसरा जन्म, नया जन्म बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। What a wonderful lesson. कितना- Jacob in his old age, he is teaching to Joseph, he is teaching to Manasseh and Ephraim, he is teaching to you and to me also. कितना अद्भुत पाठ ये याकूब उस समय यूसुफ को सिखा रहा है, मनश्शे और अफ्रैम को सिखा रहा है, और आज आपको और मुझे सिखा रहा है। He blessed the children of Joseph. उसने यूसुफ के बच्चों को आशीष दिया। And secondly, और दूसरा, he worshipped the Lord, verse 21. और 21 वचन में लिखा है कि उसने परमेश्वर की आराधना की। Yeah, he worshipped the Lord. परमेश्वर की आराधना की। So that is the second thing. ये दूसरी बात। So one thing he is doing horizontally and one thing he is doing तो vertically. यहाँ पर हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि एक चीज वो यहाँ पर पृथ्वी पर कर रहा है और दूसरा स्वर्ग की ओर कर रहा He है। understood that the worship is the permanent ministry. और उसने ये इस बात को समझ गया कि आराधना या दंडवत उपासना ये स्थायी सेवा है। I'm not going to explain all these things now. आज और अभी इन बातों को मैं नहीं बताऊंगा। Two important things. दो मुख्य बातें, Passing on the blessings to the next generation आशीष को दूसरे पीढ़ी को देना and till the death worshiping the Lord. और अंत तक परमेश्वर की आराधना करना। God said, write these two things. परमेश्वर ने कहा ये दो बातों को लिखो, I will reward these two things. मैं इन दो बातों का प्रतिफल दूंगा। What about us? हमारे बारे में क्या? What are we doing with the children God has given to us? हम क्या कर रहे हैं जो बच्चे प्रभु ने हमें दिए हैं? Are we passing on the blessings to them? क्या हम अपने आशीष को अपने आने वाले पीढ़ी को दे रहे हैं? Are we regular worshippers? क्या हम लगातार आराधक हैं? We are having faith. यदि आपके जीवन में विश्वास है, आप By उसको करें। faith, Jacob did these two. विश्वास के द्वारा याकूब ने ये दो चीज को किया। What about you? आपके बारे में Let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। प्रार्थना करें। Lord, Father, हमारे
हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, Lord, we thank you for the word they submitted to us. प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं जो वचन आपके दास ने लेकर आया। Thank you, Lord, for speaking to us. प्रभु जी हमारे हृदयों से आपने बात की, हम धन्यवाद देते हैं। Lord, thank you, Lord, for reminding us what we should be doing with our children. हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, एक बार फिर से आपने हमें याद दिलाई कि हमारे बच्चों के साथ हमें कैसे करना है, Lord, that we are the stewards of our children. कि हम प्रभु हमारे बच्चों की देखभाल करने वाले हैं। That we have given us great responsibility, Lord, and how we should bring them up. कि प्रभु आपने एक बड़ी जिम्मेदारी हमें दी है कि किस प्रकार से हमें उसको बड़ा करना है Lord, how we should pass on, Lord, blessings you have given to us, to our children. और किस प्रकार से जो आशीष आपने हमें दी है हम अपने बच्चों को दें, Because thy blessings are always eternal. क्योंकि आपकी आशीषें हमेशा सनातन की है। Lord, help us. प्रभु जी हमारी सहायता करें। Teach us what is important in our life. प्रभु जी जो कुछ महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के अंदर वो सिखाएं। What is of eternal value and what is of temporal value. कौन सी चीज तात्कालिक है और कौन सी चीज चिरस्थायी है। And also, Lord, help us never to forget that worship is our main occupation. और ये बात हम कभी ना भूलें प्रभु जी, संसार में रहते हुए कि आराधना हमारा सबसे पहला कार्य है। We give glory to you all the time. तो कि प्रभु आपको हमेशा हम महिमा दें। Teach us, Lord. प्रभु हमें सिखाए। Help us to carry these lessons to our home. प्रभु जी ये सारे बातों जो हमने सीखा अपने घर तक हम लेकर जाए। In Jesus' precious name we pray. प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम से मांगते हैं। आमीन। Sing Psalm number 70. While singing the song, we bring our tithes and offerings to the Lord. So please come. First is the last